السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ نگراں حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع یقینی بنائے گی، انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا، غیر قانونی طور پر مقیم تمام باشندوں کو واپس بھیجا جائے گا، مؤثر انتظامی اقدامات سے ضروری اشیاء کی قیمت میں کمی آئی، فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہیں، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، رنگ روڈ پروجیکٹ پر کام کی رفتار بارے بریفنگ، 8 کلومیٹر جنوبی حصے کی تعمیر 30 جنوری تک مکمل ہو جائے گی، امامیہ کالونی شاہدرہ فلائی اوور کا دسمبر میں افتتاح ہوگا، لاہور فیصل آباد ریل ٹریک پر تعمیر ہونے والے اس فلائی اوور کا 70% کام مکمل، نگراں وزیر اعظم کا میو ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کے کام کا بھی جائزہ، مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، وزیر اعظم کی سینٹرل جیل کو لکھپت کے زیر علاج قیدیوں کی عیادت۔ سینٹ کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں، سکولوں، امدادی کارکنوں اور شہری آبادی پر بمباری کی شدید مذمت، فلسطین کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے، پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی، اس ایشو پر قومی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ صہیونی سفاکیت بے لگام، نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری، مزید 219 افراد شہید، 24 روز سے جاری جارحیت میں شہداء کی تعداد 8525 ہو گئی، 3542 بچے اور 2187 خواتین شامل، غزہ پر اب تک 18000 ٹن بم گرائے گئے، یہ تعداد ہیروشیما پر گرائے گئے بموں سے 1.5 گنا زیادہ ہیں۔ شمالی غزہ میں اسرائیل کا زمینی حملہ جاری، بمباری میں جبالیہ مہاجر کیمپ تباہ کر دیا گیا، حماس جنگجوؤں کے ساتھ شدید جھڑپیں، اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگ بندی سے انکار، صہیونی دہشت گردی میں 124 ہیلتھ ورکرز، 18 سول ڈیفنس اہلکار بھی لقمہ اجل بن گئے، سچائی دنیا تک پہنچانے کی کوشش میں 35 صحافی بھی جان سے گئے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم، ملک بھر میں ہولڈنگ سینٹرز قائم، غیر قانونی مقیم باشندوں کی واپسی کے لیے ایکشن پلان مرتب، 2 نومبر سے بڑے آپریشن کا آغاز ہوگا، قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ لوگ بے دخل ہوں گے جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں، نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی۔ معاشی پالیسیز کے ثمرات، سٹاک مارکیٹ میں تیزی، ٹریڈنگ کے دوران 6 سال بعد 52,000 کی سطح عبور، انڈیکس 437 پوائنٹس اضافے کے بعد 51,920 پر بند۔ سپریم کورٹ میں نیب قانون میں ترامیم سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت، تفصیلی فیصلہ جاری ہونے تک احتساب عدالتوں کو واپس آنے والے مقدمات کے حتمی فیصلے سے روک دیا، چیئرمین تحریک انصاف کو نوٹس جاری، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تفصیلی فیصلے کے بعد تک ملتوی کر دی۔ نئی حلقہ بندیوں پر دائر کیے گئے اعتراضات پر سماعت کل سے شروع، الیکشن کمیشن کی طرف سے بینچ تشکیل، 1، 2 اور 3 نومبر کی سماعت کے لیے اعتراض کنندگان کو نوٹس سے ارسال، نئی حلقہ بندیوں پر مجموعی طور پر 1324 اعتراضات موصول ہوئے، 30 نومبر کو حتمی اشاعت ہوگی۔ ہر جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کا پورا حق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے،
माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है, पाकिस्तान के इक्तिसादी एजेंडे को किसी सूरत मुतासिर नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में इजलास, इंतखाबी उमूर और मजमूई सूरत हाल का जायजा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून का मंशूर अवामी मसाइल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। आम आदमी को फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए निज़ाम अदल में अहम और बुनियादी इस्लाहात तजवीज़ की जानी चाहिए। मोहम्मद नवाज शरीफ। कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सिंध में मुसलसल कामयाबियां आवाम के एतमाद का मजहर है। अवामी मैंडेट से एक बार फिर हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में इमायदीन से गुफ्तगू। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, सीपैक मंसूबों पर भी बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान का लाखों एकड़ गैर आबाद अराजी को काबिल काश्त बनाने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से मुलाकात, क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की इंतहा, मुहासिर और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा। बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारी और मावराए अदालत कत्ल के वाकयात मामूल बन गए। हुर्रियत क़यादत का तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखने का अज़्म। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश मुसलमानों से नफरत में सरे फहरिस्त। 2022 में अक़लियतों के खिलाफ 13,000 से ज़ायद जराइम। 2016 से 21,000 मदरसा असातिज़ा की तनख्वाहें बंद। 150 से ज़ायद शहरों, तारीखी मकामात और जगहों के नाम हिंदू तर्ज पर तब्दील। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, जबकि निगरां हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएगी। म्यू अस्पताल लाहौर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तौर पर रहने की इजाजत नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम बाशिंदों को उनके मुल्क में वापस भेजा जाएगा। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। किसी भी रजिस्टर्ड सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत किसी किस्म का गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं करेगी। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातें वोट के हसूल के लिए अवाम को कायल करें। ये हक अवाम का है कि वो किस सियासी जमात को वोट दें। हमारी हुकूमती पॉलिसी ये है कि जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, जितनी छोटी सियासी जमातें हैं, उनको इक्वल राइट भी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है। इसके बावजूद अगर वो कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मैसर नहीं है, ये बात कहने की उनको आज़ादी भी है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। वज़ीर आज़म ने कहा कि बारहा कह चुके हैं कि रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेजा जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन को अपने मुल्कों में वापस भेजा जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी दूसरे मुल्क का शहरी वीजा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। हमने इन पे कोई परपेचुअल बैन नहीं लगान लिया कि ये आज के बाद ता क़यामत वापस पाकिस्तान नहीं आ सकते। जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ हैं अराउंड 1.7 मिलियन उनकी तादाद है, उनमें से हम एक फ़र्द को भी वापस नहीं भेज रहे। फलस्तीन की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गजा पर OIC इजलास में वजीर खारजा ने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत करता है। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए और लोगों तक इमदाद की रसाई दी जाए। पाकिस्तान ने को होस्ट किया सऊदी अरेबिया के साथ OIC का इजलास। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पर उसको अटेंड किया। गजा की सिचुएशन जो कि हॉरिफिक है, जो कि हॉरिबल है, कंडेमेबल है,
یہ انسانی المیہ کو جنم دے رہا ہے، اور ہم تواتر کے ساتھ یہ بات کرتے آ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزنٹ کرائسس ہے اس میں فوری طور پہ ایک تو جنگ بندی ہونی چاہیے اور ہیومن کوریڈور جو ہے وہ سٹارٹ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دورہ لاہور میں پنجاب حکومت کے بہت سے منصوبوں سے متعلق آگاہی حاصل ہوئی۔ تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہی قلعے کی ثقافتی ورثے کی بحالی خوشائند ہے، اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس توقع کا اظہار کیا کہ دوسرے صوبے بھی ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ شبیر۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صوبائی دارالحکومت لاہور میں عوامی فلاح کے مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ لاہور میں رنگ روڈ کے زیر تعمیر جنوبی حصے SL3 کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم کو اس اہم منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ رنگ روڈ کے 8 کلومیٹر لمبے جنوبی حصے کی تعمیر 30 جنوری 2024 تک مکمل ہو جائے گی اور اس منصوبے سے جنوبی پنجاب سے آنے والی ٹریفک کے دباؤ میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ وزیر اعظم نے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے لیے پنجاب حکومت کی کاوشوں کو سراہا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے لاہور میں زیر تعمیر امامیہ کالونی شاہدرہ فلائی اوور کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ لاہور فیصل آباد ریلوے لائن کے اوپر تعمیر کیے جانے والے اس فلائی اوور کا 70% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ امامیہ کالونی شاہدرہ فلائی اوور 18 ماہ کا پروجیکٹ تھا جو پنجاب حکومت کے تعاون سے 6.5 ماہ میں مکمل ہوگا اور دسمبر 2023 میں اس کا افتتاح ہوگا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نیو ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایمرجنسی بلاک میں بنائے گئے نرسنگ کاؤنٹر، ماڈل رومز اور کنسلٹنٹ رومز کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نے ہسپتالوں میں نئے بیڈز کی فراہمی کے لیے مقامی صنعت کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کے زیر علاج قیدیوں کی عیادت کی اور انہیں پھول دیے۔ وزیر اعظم نے نیو ہسپتال کے ریڈنگ روم میں موجود سہولتوں کا بھی جائزہ لیا اور وہاں موجود ڈاکٹروں سے گفتگو کی۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سینٹ میں دوسرے روز بھی بحث جاری رہی۔ ارکان نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے۔ صہیونی افواج کی جانب سے غزہ میں انسانی بحران دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف تحریک پر دوسرے روز بھی بحث جاری رہی۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے ایوان کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان کی ریاست ہمیشہ سے فلسطین کے عوام کے حق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ یہ پاکستانی قوم کا، پاکستان کے عوام کا ایک غیر متزلزل ایمان ہے کہ فلسطین کے عوام کی جدوجہد کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ دنیا کے تمام باضمیر لوگ فلسطینی ہیں۔ پاکستان کی ریاست ہمیشہ سے فلسطین کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتی رہی ہے اور آج بھی پاکستان اپنے اس اصولی موقف پر کھڑا ہے۔ پاکستان آج بھی دنیا کی ان چند ریاستوں میں ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان نے کہا کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے فلسطینیوں کی شہادت پر رنجیدہ ہیں۔ ادویات، بجلی اور پانی کی بندش سے فلسطینی بے پناہ مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو اسرائیل کے خلاف بامقصد کارروائی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکیں۔ اسرائیل غزہ میں انسانی حقوق اور جنگی اصولوں کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ سینٹ کا اجلاس صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسرائیل کی فلسطینی علاقوں پر بمباری میں مزید 219 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ 24 روز سے جاری صہیونی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 8525 ہو گئی ہے، جن میں 3542 بچے اور 2187 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر اب تک 18000 ٹن بم گرائے گئے ہیں۔ یہ تعداد ہیروشیما پر گرائے گئے بموں سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔
قابض فوج نے رفح مہاجر کیمپ پر بم برسائے جس میں خواتین اور بچوں سمیت 18 افراد شہید ہوئے۔ غزہ کے وسطی حصے کے زیتون محلے میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شمال مغربی حصوں کے شہر تارا، بیت اللحیہ اور بیت حانون پر بھی بمباری ہوئی۔ خان یونس اور البریج کے علاقوں میں بھی گولہ باری کی گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے شمال میں انڈونیشیا ہسپتال، فلسطین ہلال احمر کے القدس ہسپتال، غزہ یورپ ہسپتال اور ترک فلسطین دوستی ہسپتال کے طرف بھی بمباری کی۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے شمال میں حماس سیاسی بیورو کے نائب سربراہ صالح الوری کے گھر کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ صہیونی جہریت میں 2 لاکھ سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ان میں سے 32,500 مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہیں۔ 203 اسکولوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ ان حملوں میں 35 صحافی، 124 ہیلتھ ورکرز اور 18 سول ڈیفنس اہلکار بھی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی، ایسا کرنا حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ آسٹریلیا نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف غیر قانونی مقیم یہودیوں کے بڑھتے ہوئے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ اس طرح کے تشدد سے کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ فلسطین کے مستقل مبصر ریاض منصور نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی غزہ کی پٹی کو خالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب تشدد مغربی کنارے تک پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قتل و غارت کا کسی کو بھی جواز نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی قاتل کو مزید وقت دینے کی وجوہات تلاش کی جائے۔ مغربی کنارے میں آباد کار اور قابض افواج کے ہاتھوں قتل و غارت اور جبری نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سفیر لانا زکی نصیبہ نے کہا کہ پرتشدد کارروائیوں سے مقبوضہ مغربی کنارہ محفوظ نہیں۔ اسرائیلی آباد کار اور قابض فوج فلسطینی شہریوں پر مسلسل حملے کر رہے ہیں اور انہیں بے گھر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پورے خطے میں وسیع پیمانے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اسرائیل غزہ پر حملے بند کرے۔ چین کے مستقل مندوب چانگ جن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے غزہ کی مکمل ناکابندی ختم کرے۔ ہنگامی انخلاء کا حکم بھی فی الفور منسوخ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ چین کا یہ موقف ہے کہ بنیادی اشیاء ضروریات کی فراہمی جلد بحال کر کے بڑے پیمانے پر انسانی تباہی کو روکا جائے۔ چانگ جن نے سلامتی کونسل سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر اتفاق رائے پیدا کرے اور جلد از جلد ذمہ دارانہ اور بامانی اقدامات کرے۔ چین کے مستقل نمائندے نے کہا کہ اگر غزہ کی پٹی کی صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو یہ مزید کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، جس سے بڑے پیمانے پر انسانی تباہی کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزین ایجنسی UNRWA کے سربراہ فلپ لازارینی نے سلامتی کونسل کو خبردار کیا کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، محصور علاقے میں فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کے ساتھ جبری نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایجنسی کے کمشنر جنرل نے خبردار کیا کہ اگر یہ خرابی مزید برقرار رہی تو اقوام متحدہ کے لیے غزہ میں کام جاری رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنسا تھامسن گرین فیلڈ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ امریکہ نے اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ غزہ میں مواصلات کی بندش کے بارے میں فکر مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے شہریوں، اقوام متحدہ کے اہلکاروں اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی زندگیوں کے لیے مزید خطرہ بڑھ جائے گا اور غزہ میں انسانی بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر کے پہلے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نگراں حکومت معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ سی پیک سے پاکستان نے ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی اور ریسرچ کو اپنا کر خود کفالت حاصل کی جا سکتی ہے۔ رانا افتخار احمد سے تفصیل جانتے ہیں۔ لاہور میں انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر کے پہلے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اپنے منفرد محل وقوع کے باعث قدرت نے پاکستان کو بہترین قدرتی اور انسانی وسائل سے نوازا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافے اور ان کی استعداد کار بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک ملکی ترقی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ The government has undertaken various initiatives to tap into our economic strengths and empower our youth. The China-Pakistan Economic Corridor, for instance, is a game-changing project that holds the potential to transform our economy. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، خصوصاً آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ The software firms in Pakistan have made substantial contributions. This impressive growth not only helped boost export revenue, but also generated employment opportunities with over 200,000
IT professionals working in the industry. The continuous expansion and success of Pakistan's software industry, as indicated by these statistics, are pivotal factors in the country's positive foreign exchange progress. इंस्टीट्यूट के सरबराह मोहम्मद फैसल जंजुआ ने इदारे में जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर रोशनी डाली। इस मौके पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने डिग्री मुकम्मल करने वाले तालिब इल्मों में असनाद और मेडल्स भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब होने वाले तुलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि वो मुल्क व कौम की खिदमत और तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म ने हकीमुल उम्मत को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शायर मशरिक के अफ़कार की रोशनी में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के ख्वाब की ताबीर मिली। उन्होंने कहा कि बहैसियत कौम हम सब को मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद में किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने लाहौर में मुलाकात की। उन्होंने सूबे से मुतालिक उमूर के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन आज ख़त्म हो गई है। कल से गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। तुरहम के रास्ते बड़ी तादाद में अफगान शहरी रवाना हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सज्जाद। वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन के आखिरी रोज पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की बड़ी तादाद रज़ाकाराना वापसी के लिए तुरखम सरहद पहुंची। पाक अफगान शाहरा पर जमरोद से तुरखम तक जगह जगह अफगान खानदानों से बड़े ट्रक खड़े मौजूद थे। ये अफगान खानदान अपने वतन जाने के लिए कानूनी मराहिल मुकम्मल होने के इंतजार में थे। 1972 से हम इधर रह रहे थे और अभी जा रहे। हमारे शादी भी इधर हुए, हमारे बच्चे भी इधर पैदा हुए। मैं सियालकोट शहर में रहता था, अब जाना है अपने मुल्क। हम पाकिस्तान आवाम से बहुत खुश है। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में निगरान वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल शाह का खेल ने बताया कि अब तक 82,500 से ज़ायद गैर मुल्की शहरी रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पकड़े जाने वाले गैर मुल्की शहरियों के लिए बुध और जुमरात, पंजाब से पकड़े जाने वाले अफगान शहरियों के लिए जुम्मा और हफ्ता और खैबर पख्तूनख्वा से पकड़े जाने वालों के लिए इतवार, पीर और मंगल के दिन मुकर्रर किए गए हैं। हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जो वॉलंटरीली जाना चाहते हैं वो वॉलंटरीली अपने वापस मुल्क को जाएं और जो नहीं जाते हैं बासे मजबूरी जो है स्टेट हरकत में आएगी। अफगान शहरियों के लिए लंडी कोतल में खसूसी कैंप कायम किया गया है जहां FIA, नादरा और दीगर मुतालिका इदारों के अहलकार मौजूद होंगे जो उनकी वापसी का अमल में कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को अपने मुल्क में जाना होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशत गर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलव्विस पाए गए हैं। रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्कों को वापस जाने वालों को हम सराहते हैं। डेडलाइन के बाद रज़ाकाराना वापस न जाने वाले गैर मुल्की बाशिंदों के लिए मुल्क भर में होल्डिंग सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। तफसील बता रहे हैं अम्माद अवान। जो काम मुंतखब हुकूमतें नहीं कर सकी आखिरकार निगरान हुकूमत ने कर दिखाया। पाकिस्तान में अरसा दराज से मुकीम नॉन रजिस्टर्ड पनागुज़ीनों की वापसी का अमल डेडलाइन आते ही तेज हो गया। पेशावर से मुल्हिका खैबर और बनू मीरान शाह से लगने वाली सरहदों पर वापस जाने वाले अफगान महाजरीन का सेले रवां है कि बढ़ता जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला का कहना है कि बगैर दस्तावेजात के रहने वाले तारकीन वतन की वापसी के लिए प्लान ऑफ एक्शन तरतीब दे दिया है। कोई भी एक रेफ्यूजी को हम यहाँ से पाकिस्तान से डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग जाएंगे पाकिस्तान से जो कम्प्लीटली इलीगल है। PTV से बातचीत करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि डेडलाइन गुजरने के बाद चारों सूबों में कायम होल्डिंग सेंटर्स पनागुज़ीनों को अपने मुल्क डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। 2 नवंबर ऑनवर्ड जो है वो हमारे होल्डिंग सेंटर्स में चले जाएंगे। वहाँ होल्डिंग सेंटर्स में वी विल कीप देम फॉर 2 days, फॉर 3 days, विल ट्राई टू प्रोवाइड देम फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज और उसके बाद फिर हम उनको हमारी मर्जी के बॉर्डर पे डिपोर्ट करेंगे। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 80,000 से 1 लाख अफगान शहरी डेडलाइन से पहले ही बाइज्जत तौर पर अपने घरों को वापस जा चुके हैं, जिससे उम्मीद पैदा हुई है कि मुहाजिरीन की वापसी का अगला मरहला भी पुरअमन तौर पर अंजाम तक पहुँच जाएगा। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
बलूचिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफराद की बड़ी तादाद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट से वतन वापस जा चुकी है। तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। 31 अक्टूबर तक की मोहलत के बाद 1 नवंबर से एक्शन लिया जाएगा। रजाकाराना तौर पर अब तक चमन बॉर्डर के रास्ते 25,000 तारकीन अफगानिस्तान जा चुके हैं। वापस जाने वालों के लिए कोयटा में 2 होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। हाजी कैंप में 300 बेड्स और PCSIR में 500 बेड्स के साथ लोगों के कयाम का इंतजाम किया गया है। मेडिकल कैंप के साथ नादरा की तरफ से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए AVS सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। यहाँ से अफगानिस्तान लौटने वालों को बॉर्डर क्रॉसिंग तक ले जाया जाएगा। जो गैर कानूनी तारकीन वतन अभी तक नहीं निकले उनको फॉरेन एक्ट के तहत डिटेन किया जाएगा और उन्हें उन होल्डिंग सेंटर्स तक लाया जाएगा। प्रॉपर्टीज जिनकी डिटेल्स हमारे पास हैं कल उनको सील किया जाएगा। पासपोर्ट की शर्त से इख्तिलाफ और चमन बॉर्डर पर एहतजाज करने वालों को भी समझना होगा कि पासपोर्ट एक पहचान है। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना एग्जिट और एंट्री हो नहीं सकती। जो बॉर्डर पर इस वक्त एहतजाज चल रहा है, मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क की रेट को ये चैलेंज करने के मुतरादिफ है। ये धरना न रियासत के मुफाद में है, न आवाम के मुफाद में, न पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के मुफाद में। बलूचिस्तान में तारकीन वतन की तादाद तकरीबन 5,84,000 है। UNHCR डेटा के मुताबिक बलूचिस्तान में 3,29,631 रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज आबाद हैं। सर्द जंग, दाखिली अदम इस्तेहकाम और 9/11 के बाद उज़्बेक, ताजिक, गंधारी, दरी, फारसी और पश्तो बोलने वाले अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद बलूचिस्तान मुंतकिल हुई। कानकनी, मजदूरी, नानबाई और फ्रूट्स के बिजनेस से वाबस्ता रेफ्यूजीज बड़े शहरों में फैलते गए और आज सूबे के हर बड़े बिजनेस में अफगान सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट भी है। मगर POR, UNHCR रेफ्यूजी स्टेटस, तस्कीरा और वीजा के अलावा अफगानिस्तान से आने वालों की कसीर तादाद मुकामी कबाइल से रिश्तेदारियों की वजह से CNIC और लोकल सर्टिफिकेट से बनवा चुके हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सोलंकी और मोहम्मद अली ने कहा है कि गैस की कीमतों में इजाफा ना किया जाता तो मुल्क को 400 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। गैस की कीमतों में हालिया इजाफे से 57% घरेलू सार्फिन पर बहुत मामूली फर्क पड़ेगा, जबकि 93% सार्फिन को इस मद में 139 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मजीद क्या तफसील है बताएंगे अरसलान असद। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि ओगरा के मुताबिक गैस खरीदारी के लिए हमें 697 अरब रुपए चाहिए, जबकि बैरून मुल्क से RLNG की खरीदारी के लिए अलग से 210 अरब रुपए दरकार होते हैं। मुल्क में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त नहीं हो रहे, जबकि आवाम को कीमत खरीद से भी सस्ती गैस की फराहमी के लिए सूद पर मजीद कर्जे लेने पड़ते। जो हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं, जो घरों के ऊपर है, उसमें 57% जो आबादी है, 57% जिनके पास कनेक्शन है, उनके गैस की जो कीमतें हैं, टैरिफ वो नहीं बढ़ा, उनका फिक्स चार्ज हमने 400 रुपये लगा दिया है। इसके बाद जो इनका जो मैक्सिमम बिल आएगा वो तकरीबन 1300 रुपये आएगा, इससे ऊपर बिल किसी का भी नहीं आएगा। सेकंड कैटेगरी है रोटी तंदूर, जहाँ पे रोटी मिलती है आवाम को, उसके रेट हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाए। तीसरी कैटेगरी है फर्टिलाइज़र की, उसके ऊपर इस समरी में कोई चेंज नहीं है। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर सिर्फ 70 रुपये का इंक्रीज किया गया, तो किसान को भी इंशाल्लाह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। निगरान वजीर तवानाई ने बताया कि अब साउथ और नॉर्थ में नई और पुरानी सनतों को यकसां निर्खों पर गैस मिलेगी, जिससे मुल्क में नई सनतें लगेंगी। CNG शोबे में गैस कीमतें 3600 रुपये मुकर्रर की गई हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल से गैस कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, जिससे पेट्रोलियम सेक्टर में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 921 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर इसमें हम RLNG ऐड करें, बाकी चीज़ें ऐड करें, पूरी पेट्रोलियम चेन के नुकसान ऐड करें, तो वो आज 2100 अरब पे पहुंच चुका है। अगर हम गैस प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि मुल्क में सर्कुलर डेट जो कि नुकसान है पेट्रोलियम सेक्टर का, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो वो बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, और एक दिन पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए। इस प्राइस इंक्रीज के बाद हमारे पूरे पेट्रोलियम सेक्टर में सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सर्दियों में गैस का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हमारे मुल्क में तलब के मुकाबले में गैस की रसद बहुत कम है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से गैस दरामद करनी पड़ती है। मुल्क की मफाद का तकाजा था कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय है। मियाँ रजा रब्बानी हमारे मुल्क के सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं, उन्हें सियासी जमातों और निगरान हुकूमत पर तनकीद का हक हासिल है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि निगरान हुकूमत माजी की हुकूमतों पर तबसरा नहीं करेगी। माजी की हुकूमतों की किस्मत का फैसला
अवाम आइंदा इंतखाबात में करेंगे। असलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सदारत में काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वज़ारत तवानाई की जानिब से माली साल 2023-24 के लिए कुदरती गैस की कीमत फ़रोख्त में तरमीम से मुतालिक समरी पर गौर किया गया। ECC ने तफसीली बहस के बाद 1 नवंबर 2023 से कुदरती गैस की कीमतों में तरमीम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और संगे मील, कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन इंडेक्स ने 52,000 की सतह को अबूर किया। ताहम प्रॉफिट टेकिंग के बाइस 100 इंडेक्स 437 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 51,920 पर बंद हुआ है। तफसील बताएंगे ज़ीशान अहमद खान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक अहम संगे मील, मौजूदा हुकूमत की मस्बत माशी पॉलिसियों के बाइस स्टॉक मार्केट दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट करार पाई। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा स्टॉक मार्केट ने सितंबर से अक्टूबर तक के महीनों में 100 इंडेक्स 40,000 से 52,000 की सतह तक पहुंचा और मजमूई तौर पर अब तक 2 माह में 12,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। माहिरीन मईशत का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बरकरार रखने के फैसले समेत दीगर मस्बत असरात मार्केट पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जो मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं। एक तो ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, इलेक्शंस आने वाले हैं, प्लस जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं इस थोड़े से अरसे में SIFC के थ्रू इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो SIFC की इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और जो कंसिस्टेंसी इस केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं और जो वो पॉपुलस अनपॉपुलस डिसीजंस ले रही है, उसका इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पे आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता खुल के स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आ रहे हैं और वो पॉइंट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आज 45 करोड़ 53 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 15 अरब 63 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 188 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 146 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 22 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात में पाकिस्तान टेलीविजन का कौमी किरदार अहमियत का हामिल होगा। तमाम सियासी जमातों की यकसा कवरेज तरजीह होनी चाहिए। इस्लामाबाद में PTV न्यूज़, करंट अफेयर्स और सोशल मीडिया टीम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए PTV का किरदार नाकाबिले फरामोश होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की हालात हाज़रा के प्रोग्रामों में शिरकत से PTV की साख में इजाफा होगा। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात को PTV न्यूज़ और करंट अफेयर्स के प्रोग्रामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि खबरों में ऑन कैमरा रिपोर्टिंग और समाजी मसाइल से मुतालिक रिपोर्ट्स को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सलीम मानवीवाला के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें आइंदा इंतखाबात और मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का पूरा हक हासिल है। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़िफ़ फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान के इकनॉमिक एजेंडे को किसी सूरत मुतासिर नहीं होना चाहिए। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने इस तवक्को का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएगा। नई हल्का बंदियों पर दायर किए गए एतराज़ात पर समाअत कल से शुरू होगी। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से बेंच तश्कील दिए जा चुके हैं। 1, 2 और 3 नवंबर की समाअत के लिए एतराज़ कुनंदगान को नोटिस भी इरसाल किए गए हैं। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात मौसूल हुए हैं। पंजाब से 672, सिंध से 228, खैबर पख्तूनख्वा से 293, बलूचिस्तान से 124, जबकि इस्लामाबाद से 7 एतराज़ात वसूल हुए हैं। एतराज़ात की समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में रायवंड में इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबी उमूर और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में सेनेटर इरफान सिद्दीकी को आइंदा इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने हिदायत की कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर अवामी मसाइल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निज़ाम अदल में अहम और बुनियादी इस्लाहात तजवीज़ की जानी चाहिए ताकि आम आदमी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कराची में मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सियासी रहनुमा नवाबजादा आमिर खान मक्सी भी इस मुलाकात में मौजूद थे।
मारूफ समाजी कारकुन और JDC फाउंडेशन के सरबराह जफर अब्बास ने भी चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और साथियों समेत PPP में शमूलियत का ऐलान किया। जफर अब्बास ने JDC की फलाही सरगर्मियों से चेयरमैन को आगाह किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। उन्होंने शहर कायद में अवामी मसाइल के हल के लिए इकदाम के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से नवाब शाह के माहिदीन और ज़ोमा पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में आइंदा इंतख़ाबात और सियासी हिकमत अमली से मुतल्लिक़ तजावीज़ पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल इंतखाबी कामयाबियाँ अवाम के एतमाद का मज़हर हैं। उन्होंने कहा कि कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। अवाम की हिमायत से पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अवामी हुकूमत कायम करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से चीन के सफीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। इस मुलाकात में CPEC के तहत जारी मंसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लाखों एकड़ गैर आबाद काबिल काश्त अराजी को चीन के ताउन से जेर काश्त लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती अमल में इजाफे के लिए सनती जोन्स का क़याम अहमियत का हामिल है। चीनी सफीर ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर इस खित्ते की तकदीर बदल सकते हैं। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। गुलाम सरवर खान ने लाहौर में IPP के प्रेसिडेंट इन चीफ जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से लाहौर में मुलाकात की और उनकी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। लिया से PTI के साबिक ज़िला सदर चौधरी यासिर अरफात और साबिक ज़िला वाइस चेयरमैन बैतुल माल मोहम्मद जफर इकबाल ने भी जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी अमल के सिलसिले में कल से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ के हमरा जाती उमरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए अवाम की नुमाइंदा हुकूमत का इंतखाब नागुज़ीर है, जिसके लिए फौरी तौर पर आइन के तहत इलेक्शन करवाए जाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सदारत में पार्टी के मुशावरती इजलास में फ़लस्तीन में होने वाली इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की गई है और फैसला किया गया है कि जल्द फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने एक बयान में कहा है कि आइन की बालादस्ती और जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने का हक है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम इदारे अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करें। JUI का अन मार्च काफिला JUI के रहनुमा डॉक्टर राशिद खालिद सुमरो की क़यादत में मटियारी पहुंच गया। मटियारी में मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया जलसों से खिताब करते हुए JUI रहनुमा का कहना था कि मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए एहतसाब के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अवामी ताकत से इंशाअल्लाह बरसरे इक़्तिदार आकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सिंध अमन मार्च टंडो मोहम्मद खान से टंडो अलायार पहुंचा, जहां कारकुनान की बड़ी तादाद ने मार्च का इस्तकबाल किया। रैली के शरका से खिताब करते हुए JUI सिंध के सदर राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि पूरे सिंध में हमने अमन मार्च किया है। हर जगह के लोग तब्दीली चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके सिंध की हालत को तब्दील कर देंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की नफी करते हुए इसराइल की जानिब से गजा के निहत्ते लोगों पर बमबारी जारी है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि गजा में इंसानी अलमिया शुरू हो चुका है, बीमारियां फूट रही हैं और तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ अस्पतालों पर भी बमबारी जारी है, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों से खवातीन, बच्चे, यहाँ तक कि सहाफ़ी भी महफूज नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मगरिब और अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन के मामले पर दोहरा मेयार है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम से मुतालिक अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की तफसीली फैसले के बाद तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अदालत उज़्मा के तफसीली फैसले तक एहतसाब अदालतों को वापस आने वाले मुकदमात के हतमी फैसले से रोक दिया है। अदालत ने दरखास्त गुजार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि नैब कानून में की गई 3 तरमीम एक दूसरे से रब्त रखती थी, ताहम तीसरी तरमीम पर फैसले किए बगैर पहली 2 तरमीम के हवाले से फैसला कैसे दिया जा सकता है।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को 29 नवंबर को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने कार्रवाई करते हुए तलबी के समन जारी किए। मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर जाती शुगर मिल के पास नाले की तामीर के लिए कौमी खजाने से 21 करोड़ रुपए खर्च करने का इल्जाम है। बलूचिस्तान के जिला आवरान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवानों, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सहूलतों की फ्राहमी से खुसूसी अफराद माशरे के मुफीद शहरी बन सकते हैं। माशरे में खुसूसी अफराद के हवाले से इम्तियाजी सलूक के खात्मे पर काम कर रहे हैं। वाइट केन सेफ्टी डे के मौके पर तकरीब से सदर ममलिकत के खिताब की तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। इस्लामाबाद में सफेद छड़ी के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि खुसूसी अफराद से मुतल्लिक तफरीक के खात्मे के लिए खुसूसी बच्चों को आम स्कूलों में तालीम देने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, जिसका मकसद दीगर बच्चों को खुसूसी अफराद की जरूरतों का एहसास दिलाना और साथ ही खुसूसी अफराद को भी माशरे की मुश्किलात से आगाही देना है। 4 बड़ी डिसेबिलिटीज हैं जिनको पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया से भी सीख कर एहतमाम करना चाहती है कि आप सब लोग माशरे के वर्किंग क्लास के अंदर और माशरे के इंडिपेंडेंट फर्द बने। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्पेशल जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इस बात का भी एहतमाम है कि विजुअली इम्पेयर्ड और दूसरी इम्पेयरमेंट के लोगों के लिए बाजारों को भी आसान करें। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, नाबीना बच्चे, इनको मेन स्ट्रीम में लाएं, इनको स्किल सेट्स दें और इनको माशरे का इंडिपेंडेंट अर्निंग फर्द बनाएं। इंसानी हकूक के निगरान वजीर खलील जार्ज ने कहा कि वजारत जदीद आलात के जरिए तालीम की फराहमी के साथ साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों और प्रोग्राम्स के जरिए जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के बारे में बेदारी पैदा कर रही है। इस मौके पर बसारत से महरूम बच्चों ने कौमी नगमा दिल दिल पाकिस्तान पर टेबलो पेश किया। तकरीब में बेगम समीना अलवी और मुख्तलिफ सफारतकारों समेत बसारत से महरूम बच्चों ने शिरकत की। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की आड़ में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाने का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने जिला बारामूला के इलाके डांगरपुरा में छापों के दौरान 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर, कुपवाड़ा, पुलवामा, इस्लामाबाद, कोलगाम, राजौरी और पुंछ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसी तरह के छापों और कार्रवाइयों में गिरफ्तारियां की गई। हुर्रियत क़यादत ने श्रीनगर में एक बयान में मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए लोगों पर जोर दिया है कि वह भारत की रियासती दहशतगर्दी और मादरे वतन पर उसके गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ उठ खड़े हों। उन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के आज़म का यादा किया। भारत के मोतबर ज़राए इब्लाग ने 26 अक्टूबर को कंट्रोल लाइन के करीब जिला कुपवाड़ा के इलाके मुशल में 5 तरंदाजों को हलाक करने के भारतीय फौज के दावे पर सवालात उठा दिए हैं। कलकत्ता से शाया होने वाले अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मकतूलीन आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के रिहायशी थे और उनके लवाहिकीन ने वीडियो पैगामात में पुलिस के पास गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने का एतराफ़ किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमकिन है कि ये अफराद जड़ी बूटियां जमा करते हुए गलती से कंट्रोल लाइन उबूर कर गए हों। द टेलीग्राफ ने कहा कि अगले ही दिन भारतीय फौज ने उन्हें दरअंदाज होने के बेबुनियाद इल्जाम पर कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक होने के भारतीय हुकूमत के दावे को मुस्तरद करते हुए भारतीय हुकूमत से सवाल किया कि अगर हालात वाकई नॉर्मल हैं तो वो इंतखाबात क्यों नहीं करवा रही। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात सूरत हाल मामूल के मुताबिक होने के भारतीय हुकूमत के दावों की नफी करते हैं।
नाज़रीन, भारत की रियासत उत्तर प्रदेश 2022 में अक़लियतों के खिलाफ 13,000 जराइम के साथ सर फहरिस्त रही है। मोदी सरकार ने 2016 से उत्तर प्रदेश के 21,000 मदरसा असातिज़ा की तनख्वाहें बंद कर रखी हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने रवा साल अप्रैल में मुसलमान सियासतदान अतीक अहमद को उनके भाई समेत पुलिस की हिरासत के दौरान लाइव कैमरे के सामने गोलियों से भून डाला। 2020 में दलित खातून के साथ उत्तर प्रदेश में ज्यादती और कत्ल का वाक़ा पेश आया, जिनके मुजरमों को इस साल अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ नफरत की वजह से इंतहाई बदनाम हैं। रुख करेंगे दीगर खबरों का। 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन अफराद की वापसी के लिए कराची में होल्डिंग कैंप कायम किया गया है। मजीद तफसील बताएंगे सुहेल जमाली। शहर कायद के जिला केमाड़ी में हाजी कैंप से मुत्तसिल इमारत में गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इमारत में खवातीन और मर्दों को अलग अलग फ्लोर्स पर रखा जाएगा, जबकि कैंप में 72 खेमे भी लगाए गए हैं। नादरा, FIA और स्पेशल ब्रांच के एहलकार कैंप में मौजूद हैं। होल्डिंग कैंप में रोजाना की बुनियाद पर 1500 अफराद का डेटा नादरा का अमला चेक करेगा। ये होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है। कराची का ये पहला है, टोटल सिंध में 3 है, कराची में ये फर्स्ट है और ओनली 1 अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर डिस्ट्रिक्ट में ये होल्डिंग कैंप्स बनाए जाएंगे जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। कैंप में तस्दीक के लिए आए हुए अफगान शहरियों का कहना था कि वो अशरों से यहाँ मुकीम हैं। उन्हें पाकिस्तान में अच्छा रोजगार और बहुत मोहब्बत मिली। हम 25-26 साल से इधर रह रहे। जब हम लोग बिल्कुल छोटे थे इधर आए हुए, इधर हम काम कर रहे, भट्टी का काम कर रहे, रोटी का नहीं। जब आए थे उस टाइम तो बिल्कुल मोहब्बत दिए हुए, जब मोहब्बत दिए इधर बड़ा हो गया। यहाँ 37 साल हो गया रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर बहुत अच्छा वक्त गुजारा। होल्डिंग कैंप पर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोजाना की बुनियादों पर बस के जरिए कराची से भेजा जाएगा, जहां चमन बॉर्डर पर इन अफराद को अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि बालाई इलाकों में सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -1, गिलगित 3, अनंतनाग 4 और शुपैया में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 17, कराची 23, पेशावर 16 और कोयटा में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। 5वीं एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप कल से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत 26 ममालिक के 500 के करीब खिलाड़ी शिरकत करेंगे। 5 रोज़ा चैंपियनशिप में खैरोगी और पोम्से के इवेंट्स होंगे। पाक बहरिया के ज़ेर इंतजाम चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज हो गया। इवेंट्स की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल अकेडमी मनोड़ा में मुनक़िद हुई। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 4 रोज़ा इवेंट्स में कश्तीरानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल हैं। मुकाबलों में पाकिस्तान समेत आज़रबाईजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान और तुर्किया की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए। आपका शुक्रिया।